Jesus, Jesus, Jesus. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Welcome you, Holy Spirit. We welcome you on this 20th day of the School of Holy Spirit. We all welcome you, Holy Spirit. Thank you. Have your own way now. We worship you. Lord, we worship you. Thank you. Thank you. आइए प्रभु यीशु के नाम की महिमा करें. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर. होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा. ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा. होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा. ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship him, worship him. और वर्शिप करते करते हम लोग 4 मिनट के लिए आत्मा में प्रार्थना करेंगे जो सीखा है. और बोलो लो लो शिबरे. Holy Spirit, help us, help us, help us in spirit and truth. We will worship Jesus in spirit. Help every student, Holy Ghost. और la 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 शिखरे दिले खिलीना हकबरा अर्रादाला न बशिंदरो दलो नबा रिब्रारी क्लबला बशिंदरो दलो निवे रिबेने हेंदरी दलीन हंदरे दिलीनवे शिखरो दलो न खाला बा शिबारा ला बशिंदरे हेरी दिलेने खिलीना हकबरी दलीनरी दलीनवे शिब्रारी ब्रारी क्लबला बशिंदरे दिलीनवे हे रबेन खिलीना हकबरा Radana handari dilinibi shabarodolo na kholo na hakbaro kore bele na khilina bashadara rabana handare dilinibi shibere dilina khale nabi kibere dilina ba baba rabrari klabala la bashindore udono handore kibere hendari rabona handoro rabdo klaba kore bele na khilina hakbari kere bele na khalina bashanduru rabrari klabala la bashindari rabana handare here bere diri Rab Naklahamrari, Kibaralanaha, Ore Kele Nakalina Hakbare, Kibarondro, Rabonahandore de Sikarida Lina Kalanaba, Hiravala Klabba, Rabona, Shabraba, Kibere de Oridono Kolona Hambare, Kibarodolonaba, Shabrabana Handari, Dalina Kalene Bishidri,
Kibere delina kalina handuro, Rabrari Klabalala Shindari, Rabena Hendere delini Kilina Hakbara, Kirabalana Kalene Bishinduru Dulunabu, Oh Robo Bobo Bobo, Ribaba, 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 Rabra, Ribra, Klabalala Bashidaraba, Rabona Handore delina Kalene Hekebere, Kirabalana Kalini Bi, Shikere delina Handari delina Hakbara, Kirabalana Kalene Bishidaro, Rabona Handoro Dolonaba, Shikere delina Kaline Bi, Shibere delina Kalina Hakbari, Rimbrari Klabalala Bashindoro Dolonabu, Hibare de Kilinibi, Shibiribi Nikilina Kalanaba, Rabana Handari Delinaba, Rabrari Klabalala Bashindori, Rene Kilina Hakbari Delina Handro Ruduluna Khalinabi, Rabarori Dalina Khalina Khalinibi, Here Belina Kilina Hakbara, Kira Balana Khalinabi, Shindoro Duluna Kha, Rabrari Klabalala Bashindori, Kibaradani Kalina Hakbaro Dolona Kalina Ba, Shikore Dolona Kalinibi, Shidoro Kolunubu, Ramora Handari Dalina Kalinibi, Ribre Riklibilibi, Shidoro Dolona Kalinibi, Ravana Handari Dalina Kalanaba, Shakaro Dolona Kalinabi, Shikoro Dolona Kalina Ba, Shindoro Dolona Kha, Rabrari Brari 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 Baba Baba, Ore belene khalina khaline bishiduru dulu rabre riklebele bishinduru dulu na hakbara kira balene khaline heke beri deline khiline bi shi be hiri de rabrari brari 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 de hiri be rabri ora brari 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 be belene bishiduru dulu rabina handari deline handari dilina ba shikoroduluna handuruduluna ba ravanaha shikaraha o rabani kalina hakbari dalina hakbari hirebilina kalina hakbara shindrari brari khahabari ravana hakbarana handari Ribari dari dalina hakbari danini bi ra ba ba hori ba rabra ribrari be rele ne bi shidoro dolona ba shikkere hi dalina ba nahandari ralono bo shandoro dolina ba shikkere dele rabina handari rida lala he bere rona handari dalina be shikari dalina hakbara Korobulo, robo, shikare. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much. प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस बाइबल स्कूल को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक हों और आपका लिखित वचन बाइबल हमारी अध्ययन की पुस्तक हो। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने विभिन्न प्रकार की भाषाएं दी हैं, डाइवर्स काइंड्स ऑफ टंग्स, जिसमें से एक भाषा की बात मैं करने जा रहा हूं। हर दिन मैं एक नई बात बोलूंगा। अभी हमारे पास 11 दिन वो बचे हैं, 12 दिन हैं, एटलीस्ट 12-13 बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो आज की बात आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। डाइवर्स काइंड ऑफ टंग्स, एक टंग्स होती है जिसे कहते हैं ओवरकमिंग लैंग्वेज। You can overcome on your flesh and desire of flesh. You can overcome on the feelings of your body. तो आप अपनी फीलिंग्स पे, अपनी शारीरिक लालसा, अभिलाषा, इच्छा पर ओवरकम कर सकते हैं, यानी विजयी हो सकते हैं। तो जब आत्मा में आप प्रार्थना करते हैं तो आप शरीर को नीचे कर देते हैं, आत्मा ऊपर होती है और आत्मा ओवरटेक करती है। सो ओवरकमिंग स्पिरिट प्रेयर, प्रेइंग इन स्पिरिट या टंग्स, प्रेइंग इन टंग्स मीन्स ओवरकमिंग लैंग्वेज। तो व्हेन यू प्रे इन द स्पिरिट यू विल कम, यू कैन ओवरकम योर फीलिंग्स, योर डिजायर ऑफ द फ्लैश। थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू सो मच। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कर रहे हैं, हम अपने शरीर को अपने वश में रख सकें, उसकी इच्छाओं को, उसकी लालसाओं को, उसकी फीलिंग्स को, उसके ऊपर हम जयवंत हो पाए। धन्यवाद।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। सो आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग आज 20 तारीख में हैं और हम लोग ने लगभग 2 चरण हमने पूरे कर लिए हैं। दूसरे चरण का यूं कहूं मैं आज अंतिम दिन है। अभी तक हम लोगों ने हल्की फुल्की बातें, ऊपर ऊपर की बातें सुनी, सीखी, और ये 10 डेज जो लास्ट के 10 डेज हैं, इसमें हम लोग थोड़ी गहराई में उतरेंगे, पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते में क्लोजनेस में आएंगे और बहुत नजदीकी वाली बातों में आएंगे और डीप बातें आपको सुनने को, सीखने को मिलेंगी। ऐसा पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की है। The mystery of the Holy Spirit, the mystery of the Word of God, the mystery of the salvation, इन बातों में हम लोग नीचे गहराई में जाएंगे। तो गहरी बातें तीसरे चरण में प्रभु का आत्मा हमें सिखा रहा है। ये बातें किस प्रकार से होंगी, मोबाइल के जरिए, मुझे नहीं मालूम, इस टेक्निक के जरिए, लेकिन अभी तक का मेरा अनुभव ये था कि हम लोग यहाँ आमने सामने होते थे और जब आमने सामने होते हैं तब इम्पार्टेशन पता चलता है। ठीक है ना, आप मोबाइल से कोई चीज डाउनलोड हकीकत में नहीं कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं ला सकते हैं। इसलिए शायद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गो 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 एंड प्रीच, गो एंड टीच, बट डोंट गो विदाउट होली स्पिरिट। वो जाने पे जोर तो देते हैं कि आप जाएं, जाके प्रचार करें, जाके शिक्षा दें, लेकिन जाएं कब? जब पवित्र आत्मा पा जाएं, जब होली स्पिरिट आपके ऊपर आ जाए तभी जाएं, उससे पहले मत जाएं। तो दैट कि जब आप वहां जाएं, आप उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करें, आप उनको स्पर्श करने पाएं, आप उनको रूबरू बात करने पाएं, फेस टू फेस बात हो और कुछ आपके अंदर से निकले और उनके अंदर चला जाए। दैट इज इम्पार्टेशन, है ना। जब तक इम्पार्टेशन नहीं होता तो मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, मिनिस्ट्री नहीं हुई। फिर मिनिस्ट्री वो है जब मेरे अंदर से कुछ निकले और आपके अंदर चला जाए। दैट इज द इम्पार्टेशन, है ना। वो इम्पार्टेशन करने के लिए ही परमेश्वर को यीशु के रूप में देह धारण करना पड़ा, इस दुनिया में आना पड़ा, रूबरू बात करनी पड़ी, पिता को प्रकट करना पड़ा, वचन सुनाना पड़ा। उसने लोगों के घरों में विजिट किया, पब्लिक प्लेसेस में विजिट किया, लोगों को टच किया, कुछ उसके अंदर से निकला और उसमें गया। केवल यीशु ने देखा, बोला कुछ नहीं, खाली देखने भर से मती उसके पीछे चल दिया। पतरस फुट फुट के रोने लग पड़ा जब यीशु ने पलट कर उसे देखा। इसने 3 बार मेरा इनकार कर दिया। जस्ट उसने देखा, सारी बातें पतरस को याद आ गई, कन्विक्शन आ गया। बाइबल में लिखा कि फूट फूट कर वो रोने लगा। सी, he has not spoken any word, कुछ नहीं उसने बोला, just he look। कल्पना कीजिए वो अटेंशन प्रभु पवित्र आत्मा की आपके ऊपर अगर आ जाए, when he look to you, when you look to him, समथिंग विल हैपन। आई कांटेक्ट होना जरूरी है। अभी मोबाइल से आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो प्रभु अनुग्रह देगा, दोबारा मुलाकात होगी। एनीवे, ये डीप बातें, ये अनुभव की बातें जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, कोई थियोलॉजी कॉलेज आपको नहीं सिखाएगा, वो बातें आपके नॉलेज में प्रभु जी लाना चाहते हैं। आमीन। सो आज का जो टाइटल है, आज की टीचिंग का जो टाइटल है, उसको नोट करें, बीइंग कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा का हम पर पूरा कब्जा हो जाना। हम अपने वश में न रह के पवित्र आत्मा के वश में आ जाना। कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि कोई आपको कंट्रोल करेगा। जैसे आपने देखा है कि कार या ट्रेन चलती है, उसको कोई रेलवे स्टेशन से उसको कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल करते हैं? सेंसर लगे होते हैं। जैसे कार में आप सेंसर लगा दीजिए आगे,
और आप गाड़ी पीछे चलाइए, तो चूंकि सेंसर लगा है इसलिए वो सेंसर आपको बता देगा पीछे कोई चीज लगने वाली है, आवाज दे देगा, कंट्रोल कर लो। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि प्रभु जी ने हमारे अंदर जो सिम लगाया है उसके माध्यम से हमारा शारीरिक दिशा में चलना फिरना कंट्रोल हो सकता है। होली स्पिरिट हमें कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को, हमारे मन, हमारे प्राण को, यानी फ्लैश को, बॉडी को और हमारे सोल को वो कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल हो जाना का अर्थ क्या है इसको हम लोग समझेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इसके द्वारा बड़ी आशीष मिलेगी। बीइंग कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट मीन्स समवन इज कंट्रोलिंग योर फ्लैश, योर सोल। You have to walk with the Holy Spirit, in the Holy Spirit, by the Holy Spirit. So many believers are baptized by the Holy Spirit. They speak in tongues even, but many are not controlled by the Holy Spirit. Have you seen this thing? क्या आपने ऐसा अनुभव पाया, देखा है? They are not controlled by the Holy Spirit. Although they are speaking in the tongues, it is an everyday process. Speaking in tongues, living in Holy Spirit, walking in Holy Spirit, walking by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit, it is an everyday process. ये प्रतिदिन का आपका प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यानी कि कहने का अर्थ ये आपका जीने का अंदाज है। दिस इज योर लाइफ स्टाइल। नाउ द लाइफ स्टाइल इज चेंज। वी नीड टू ब्रिंग आवरसेल्फ अंडर द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट। सो यू हैव टू बी सेंसिटिव। मुझे पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा। सेंसिटिव टू द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट इज मोर देन mere obedience to our inner prompting. So Paul says to the Ephesians in Ephesians chapter 5 verse 18, इफिसियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 18 पद में संत पौलुस कहते हैं क्या, सुनिए। पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं, फिर हम लोग उसे इंग्लिश में सीखते हैं। वहां वो कहते हैं, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। See, Paul says to the Ephesians, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. It's not an option. It is the commandment. Commandment is given by Jesus. So, being filled with the Holy Spirit is a consistent process. It is a process. It is a process. Understand this thing. When you do ministry, power will go out of you. And when light burn, oil is consumed. So you have to fill with your lamp. Lamp means yourself with the oil again and again. Same way, you have to be filled again and again. It's a process. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो दिया है वो कब तक जलता है? एक्चुअली दिया नहीं जलता। लोग कहते हैं दिया जल रहा है, एक्चुअली जो उसमें ऑयल है वो जल रहा होता है, और जब वो जलता है तब रोशनी होती है। तो हम सब कहते हैं दिया जल रहा है, दिया बुझ गया है। आपका दिया कब बुझ जाता है? जब अंदर ऑयल नहीं होता। सेम वे
आपका 6 फुटा शरीर जो दिया है, इसके अंदर जो होली स्पिरिट है वो ऑयल का काम करता है, और वो ऑयल की वजह से आपके अंदर से प्रभु की ज्योति जगती है। प्रभु की, आप खुद भी रोशन होते हैं और आप जगत को रोशन करते हैं। क्या यीशु ने नहीं कहा जाने से पहले जगत की ज्योति तुम हो? जब तक वो जगत में थे तो वो क्या कह रहे थे? जगत की ज्योति मैं हूं, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, whosoever follow me he will not be in the darkness but he has the eternal light। लेकिन जब वो जाने लगे तो उन्होंने क्या बात कही? जगत की ज्योति तुम हो, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो वो लाइट कैसे जलेगी? ऑयल के जरिए जलेगी। वो ऑयल क्या है? वो ऑयल ही होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग है। तो जब आप डेली सेवकाई में जाएंगे, व्हेन यू डू द मिनिस्ट्री डेली, then that oil will be consumed. So you need further oil. So how can you receive it? Again you have to go to the Holy Spirit. You have to kneel down. You have to talk Holy Spirit, and Holy Spirit again fill you. So it is a process of filling, everyday basis. It's not one time. Understanding, we only get saved once. But we need to be fulfilled with the Spirit every time, every day. So Paul is talking about dying to self many times and thus being refilled. तो आपको रिफिलिंग करनी है। मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि उद्धार जो है वो एक बार मिल जाता है, ये सच है। Salvation is once, but to run in the fellowship, it's a daily process, and to do the fellowship you need the Holy Spirit. थोड़ा और समझें, रिलेशन और फेलोशिप में फर्क होता है। अदन की वाटिका में वो स्पिरिट जब हटा तो क्रिएटर वही था, क्रिएशन वही था, लेकिन प्रेजेंस ऑफ द गॉड सेपरेटेड। So Adam was without God. आदम जो था बिना परमेश्वर के हो गया। उससे जो औलादे पैदा होती गई वो पर शारीरिक औलादे होती गई, आत्मिक नहीं हुई, क्योंकि आत्मा यानी प्रभु अलग थे। इसलिए नया जन्म होना जरूरी था। इसलिए बाइबल कहती है जॉन 3:6 में कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो समझे यहां पर वो फेलोशिप टूट रही थी, फेलोशिप टूट गई थी। सो मैं कहना ये क्या चाह रहा हूं कि रिलेशन जो एक बार बनता है वो टूटता नहीं है। जब आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, ग्रहण कर लिया, अब आपने भूल चूक गलती की, डिसओबीडियंसी की, तो आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। आप सांसारिक रीति से भी देखें, आपके घर में बेटे ने जन्म लिया, बेटा बड़ा हुआ, उसने कई बार आज्ञा तोड़ी, फाइनली वो विदेश में सेवा करने लग गया, वो वहां पर रहता है, आप इंडिया में, वो बाहर है। नतीजा क्या? रिश्ता टूट गया। मान लीजिए वो आपसे बोलचाल बंद कर देता है, तब भी वो आपका बेटा है। तो क्या चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि रिलेशन वही है। आप दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाइए, फिर भी वो आपका बेटा कहलाएगा। लेकिन फर्क किस चीज पे पड़ रहा है? फेलोशिप पे पड़ रहा है। आपकी और उसकी फेलोशिप पे फर्क पड़ सकता है। इसी प्रकार मेरे और प्रभु के रिश्ता नहीं टूटता, लेकिन संगति पे फर्क पड़ता है। तो जितनी बढ़िया संगति होगी, जितनी क्लोज संगति होगी, जितनी स्ट्रांग संगति होगी, उतनी आपकी बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन होगा, उतना ज्यादा आप रिफ्लेक्ट करने पाएंगे प्रभु जी को। तो रिलेशन और फेलोशिप में ये डिफरेंस है। फेलोशिप होगी तब जब रिलेशन होगा। रिलेशन कांट बी ब्रोकन, बट फेलोशिप कैन बी ब्रोकन। फेलोशिप कैन बी इफेक्टेड, इट डिपेंड अपॉन यू। ये आपके ऊपर
निर्भर करता है कि आप संगति किस तरीके की करते हैं और कैसी करते हैं। तो संत पौलुस बताते हैं कि मैं तो रोज मरता हूं ताकि मैं उससे रोज भरा जाऊं। किसी ने ऐसे कहा क्योंकि हम रोज थोड़ा बहुत लीक करते रहते हैं, हमारे अंदर से निकलता रहता है, इसलिए हमें रोज भरने की जरूरत है। Someone said it is because of leak. The flesh is constantly resurrecting itself from the dead. This is a daily battle that every believer have to fight. As long as we possess these two natures, which two nature? Flesh and spirit. We will fight this battle and need to be refilled. Flesh का salvation नहीं हुआ है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। यीशु ने आकर आपकी मेरी आत्मा का उद्धार कर दिया है, ये सच है। जो आत्मा चली गई थी वापस आ गई है, रिकंसाइल कर दिया गया स्पिरिट टू स्पिरिट में। लेकिन ये स्पिरिट ऑफ फ्लैश में है, हमारे फ्लैश का अभी उद्धार नहीं हुआ है। इसलिए जब तक हम इस दुनिया में हैं, शरीर और आत्मा में लड़ाई चलती रहेगी। वी विल फाइट दिस बैटल, और इस बैटल को जीतने के लिए, इस युद्ध में जयवंत होने के लिए वी नीड टू बी रीफिल्ड। हमको आत्मा से बार बार भरना होगा। बाइबल कहती है फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 12 पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जब मसीह हमारे साथ थे तो वो बड़ी मदद कर रहे थे, लेकिन जब मसीह चले गए तो उन्होंने क्या कह गए कि अब जबकि मैं तुम्हारे साथ यहां फिजिकली मौजूद नहीं हूं, मेरा स्पिरिट तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर है, उसकी मदद से अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसका मतलब क्या, अभी हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमें उद्धार का काम करना है। समझिए क्या चीज वो बताना चाह रहे हैं कि आत्मा का उद्धार तो हो गया है, लेकिन शरीर का अनुसार उद्धार नहीं हुआ है। तो हम गलतियां शरीर के अनुसार जब चलते हैं तब होती हैं। तो फ्लैश जो है हमारी, उसको कंट्रोल में रहना है। हमारे शरीर की लालसा और अभिलाषा, हमारी फीलिंग्स के अनुसार हमें नहीं चलना है। मेरी फीलिंग क्या कहती है, मेरी भावनाएं क्या कहती हैं, मेरा दिमाग क्या कहता है, मेरी इच्छा क्या कहती है, मुझे उसको पर स्टैंड नहीं लेना है। मुझे स्टैंड लेना है व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग, व्हाट द होली स्पिरिट इज सेइंग, जो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है। Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Hallelujah. गलतियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 17 पद को आपने पढ़ा था, है ना, कि शरीर और आत्मा ये क्या है, एक दूसरे के विरोध में है। फॉर द डिजायर ऑफ द फ्लैश आर अगेंस्ट द स्पिरिट एंड द डिजायर्स ऑफ द स्पिरिट अगेंस्ट द फ्लैश। व्हाई? For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ।
संत पौलुस कहते हैं, मैं कैसा भागा इंसान हूं, कौन मुझे इस देह से छुड़ाएगा। इस देह को मैं रोज मारता हूं, इसको रोज मरना होता है। इसलिए गलतियों 5 अध्याय के 25 पद में लिखा है, बहुत ही क्लियर वे में, इट रिटन इन ए वेरी वेरी क्लियर वे, दैट द इनड्वेलिंग एंड द इनफिलिंग ऑफ द स्पिरिट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। 25 पद में के अनुसार लिखा है, हम अगर आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। मैं शरीर में जीवित नहीं हूं, शरीर मेरा यीशु के साथ क्रूस पे कुर्बान हो गया। तो भैया आप जिंदा फिर कैसे हैं? आप तो जिंदा हैं। मैं जिंदा इसलिए हूं क्योंकि वो आत्मा के रूप में मेरे अंदर चूंकि जीवित है, इसलिए मैं जिंदा हूं। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए अब आप अपने नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने दाम लेकर मोल ले लिया, आप खरीद लिए गए हैं। तो मालिक है यीशु मसीह। तो मालिक जो कहेगा, जैसा वो चाहेगा वैसे चलेंगे, शरीर के मनमानी के अनुसार, इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, इसका मिसयूज नहीं करेंगे। सो वी लिव इन द स्पिरिट, दिस इज द salvation, and this is when we are indwell, and it is an one time event. मैंने कहा ये एक प्रकार का इवेंट है, वन टाइम इवेंट है ये। आमीन। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये हो गया कि जब मैंने सल्वेशन पाया, आत्मा से नया जन्म पाया, इसका मतलब ये हो गया कि आई एम इन क्राइस्ट नाउ, वन टाइम इवेंट। मैं मसीह में आ गया, ये एक इवेंट है। लेकिन क्या मसीह मुझ में है? दैट्स द थिंग। आपको ये गवाही तो मिल जाएगी लोगों से। लोग कहते हैं आई एम इन क्राइस्ट ब्लेसिंग्स, इन क्राइस्ट वी हैव दिस, वी हैव दिस, वी हैव दिस, लाइक दिस। लेकिन क्या आपने कभी लोगों से ये कहते सुना, क्राइस्ट इज इन मी? दैट शुड बी आवर टेस्टिमनी। क्या वो मेरे अंदर है? जब मैं ये कहता हूं मैं उसमें हूं, दैट इज द पास्ट। जो कुछ हो चुका है, क्रूस की कथा हो चुकी है, आत्मा उतर चुका है, दैट इज द पास्ट। बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज क्राइस्ट इन मी। अभी मुझे आगे जीना है, तो वो मुझे कैसे जीना है? इफ ही इज इन मी, देन माई फ्यूचर इज ब्राइट। सो पॉइंट इज दिस, क्राइस्ट इज इन यू और नॉट, दैट द मेन थिंग। और इस पे लोगों का फोकस नहीं जा रहा। सो मैं आपको थोड़ा गहराई में ले चल रहा हूं कि आप क्राइस्ट में तो हैं, क्या क्राइस्ट मुझ में है? द होप ऑफ ग्लोरी इज इन मी। क्या इसका प्रकाशन मुझे है? आमेन। लिसन, इट इज व्हेन वी yield our will to the total control of the Spirit that this affects our daily fellowship with Christ. तो मुझे रोज क्या करना है? I have to lend myself to Holy Spirit. I have to yield my spirit, soul, body to Holy Spirit. I must come under the authority of Holy Spirit. बाइबल कहती है, परमेश्वर के हाथों के नीचे बड़ी दीनता से आ जाओ तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको याद आ रहा है? आई थिंक पतरस की बुक में ये चीज लिखी हुई है। सो गॉड्स गोल फॉर आवर लाइफ इज टू बी कन्फर्म्ड टू द इमेज ऑफ क्राइस्ट एज it is written in Romans chapter 8 verse 29. आपने पढ़ा? मैंने पहले भी इस वचन को बोला है। रोमियो 8 अध्याय का 29 पर ये वो बात है, ये वो इच्छा है पिता परमेश्वर की, या यूं कहूं ये वो प्रोफेसी है पिता परमेश्वर की जो अभी भी पूरी होना बाकी है। और वहां पर क्या इच्छा लिखी है प्रभु की? वहां लिखा है कि उन्हें जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें उसने पहले से ठहराया,
क्या किस लिए ठहराया? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फॉर दोज whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be firstborn among many brothers. तो हम लोगों को क्या होना है? मसीह के स्वरूप में आना है। पिता लालायित है हमें देखने के लिए। जब वो स्वर्ग से देखता है तो वो देखता है कि एसके पूरी मेरे बेटे यीशु के रूप में, स्वरूप में है कि नहीं है। इसका अंदर से मन, इसका कैरेक्टर, इसका नेचर मेरे बेटे के अनुसार है कि नहीं है। ये मेरे बेटे को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे बेटे को रिवील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या तो वो परमेश्वर आपको फर्स्ट एडम में देखेगा या आपको लास्ट एडम में देखेगा। फर्स्ट एडम अदन की वाटिका वाला, लास्ट एडम वो जिसने जो मरकर जी उठा। सो आप किसके लिए अब जिएंगे? अपने लिए? या घर का कोई मर जाता है तो लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं और कहते हैं अरे मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये गलत बातें हैं। प्रभु जी का वचन क्या कहता है? और आवाज दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 15 पद, 2 Corinthians 5 chapter 15 verse, it is written, he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. So अब हमें अपने लिए नहीं जीना है, या जो हमारे संग रहता था वो मर गया, उसके बिना मैं नहीं जी सकता, उसके लिए भी नहीं जीना है। तो फिर किसके लिए जीना है? उसके लिए जीना है जो मेरे लिए मरा और मरकर जिंदा हो गया और जो आज जीवित है। तो वो केवल एक ही है, वो यीशु मसीह जो मरकर जी उठा और आज भी जीवित है। तो मैं किस लिए जीऊंगा? अब मैं अपने लिए नहीं जी रहा, मैं मसीह के लिए जी रहा हूं जो मरकर, मेरे लिए मरकर जी उठा है। और पवित्र आत्मा के रूप में अब वो मेरे अंदर है, तो मुझे उसके अनुसार जीना है। जैसे वो मेरे अंदर स्वभाव बनाएगा उसके अनुसार। तो मेरा जीना, जब लोगों की नजर मुझ पर जाए, तो जब लोग मुझे दें तो लोग गवाही दें, मैं गवाही ना दूं, लोग गवाही दें। और लोग क्या कहें? उनके मुख से आना चाहिए क्या? कि यार ये तो मसीह जैसा दिखता है, ये मसीह जैसी सेवकाई है, इसकी सेवकाई मसीह जैसी है ना। उनकी गवाही आए कि यू आर इन क्राइस्ट। ये कब होगा? जब क्राइस्ट मेरे अंदर होगा। मैं तो क्राइस्ट में हूं, पर क्या क्राइस्ट मुझ में है? सो ओनली एज वी वॉक कॉन्स्टेंटली इन द फुलनेस ऑफ द स्पिरिट वी आर लाइक हिम। केवल एक ही तरीका है उसके स्वरूप में बने रहने का, उसको रिप्रेजेंट करने का, कि जब हम लगातार कॉन्स्टेंटली, ऐसा नहीं कि संडे को मैं बाइबल भी पढ़ूंगा, प्रार्थना भी करूंगा, चर्च भी जाऊंगा, दान भी जाऊंगा, लेकिन मंडे टू सैटरडे जो मेरा मन है वो मैं करूंगा। नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली उसकी फुलनेस में आना है, तब वी आर लाइक हिम, तब हम उसके जैसा हो सकते हैं। इफ यू रीड गैलेशियन chapter 2 verse 20 and John 1:6, गलतियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, तो अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मेरे में जीवित है। मैं जो शरीर में अब जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। See what Paul is saying? I have been crucified with Christ. It is no longer I have lived, but Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh,
I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Because of his fullness, we have all received grace. उसकी परिपूर्णता की वजह से हमने ये चीजें प्राप्त की हैं, ऐसा यूहन्ना 1:16 में वर्णन है. So we are filled with the Spirit by putting the natural man to. So the Paul is writing कि I lived the faith life when he says कि I lived physically, but it was not Paul who lived in his body, but Christ. So he is showing his faith, living in faith life. To walk in spirit, we must saturate our mind with the scripture, Philippians 2:5. जहां मसीह का स्वभाव मेरे अंदर है नहीं है, मसीह का स्वरूप मेरे अंदर है कि नहीं है, मसीह का कैरेक्टर है कि नहीं है, ये चीजें कैसी होंगी, कब होंगी? जब मसीह, जो आत्मा और मसीह दोनों एक हैं, जब मसीह आत्मा के रूप में मेरे अंदर है. तो आपको और मुझे स्वीकार करना है, एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आवर ओल्ड मैन इज क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट एंड यील्ड आवर विल टू गॉड्स इनड्वेलिंग स्पिरिट. So Christ lives his life through us. अब मसीह हम में जीना चाहता है, तो वो कैसे जिएगा? वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में रहेगा. मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए मैं जीवित दिख रहा हूं. वो मेरे अंदर जिंदा है, वो जी रहा है, वो चल रहा है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो बोल रहा है. So as we walk in the obedience to the word, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी जब मैं होता हूं, दैट इज इट मीन्स कि आई एम लविंग जीसस. हाउ जीसस विल नो दैट यू लव मी? ही सेड, हूसोएवर लव मी ही विल ओबे मी, ही विल ओबे माय कमांड. वो मेरी बातों को मानेगा. तो जब मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं, जीवन को बना दिया है, इसका मतलब मैं मसीह से प्यार कर रहा हूं. इसका मतलब कि आप मसीह को प्रकट कर रहे हैं. और दिस इज ऑल अ वर्क ऑफ गॉड्स ग्रेस. सुनिए ध्यान से कि बिना प्रभु जी के ज्ञान अनुग्रह के ये सब संभव नहीं है. और गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि ये अनुग्रह मेरे प्रभु जी ने कर दिया है. आप खुश हो जाएंगे. हालेलुया, बोलिए हालेलुया. फिलिपियों की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, आई थिंक उसके दूसरे ही अध्याय में आपको मिलेगा, उसके 13 पद में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा से मेरे तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है. अब पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर है, वही मेरे अंदर दर्शन लाता है, विजन लाता है, प्रभु की इच्छा को प्रकट करता है, मुझे क्या करना है, क्या प्लान करना है, और वो हम करते हैं. फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू बोथ टू विल एंड टू वर्क फॉर हिज गुड प्लेजर. और ये सब प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है. तो क्या आप चाहते हैं कि मसीह आप में जिए? क्या आप चाहते हैं कि मसीह आपके द्वारा जमाने को देखे? क्या आप चाहते हैं कि मसीह जो मेरे लिए मर गया, अब वो मैं उसके लिए जीऊं और वो मुझ में रहकर जिए? वाह, मुझ में रहकर वो जमाने को देखे, लोगों को स्पर्श करे, लोगों से बातचीत करे, लोगों को अपने करीब लाए. क्या आप चाहते हैं? इट इज पॉसिबल. ये सारी बातें कौन है? प्रभु परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है, और तब हम उस चीज को करने लगते हैं. इट इज बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड वर्किंग इन अस द डिजायर एंड द पावर टू ओबे हिम. So to walk in spirit fullness is an ongoing work of grace.
अब बात समझ में आ रही है? अगर मैं एक बार के लिए ऐसे कर लूंगा तो पूरा जीवन कैसे जी पाऊंगा? इसलिए प्रतिदिन उस अनुग्रह से भरें, उस आत्मा से भरें, तो आप प्रतिदिन प्रभु को प्रकट कर सकते हैं, प्रतिदिन मसीह के जीवन को प्रकट कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो कुछ बोला ये भूमिका बताई कि किस प्रकार से आत्मा आपके को कंट्रोल करेगा, क्यों करेगा। अब हेडिंग डाल लें, कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट। आत्मा के कब्जे में रहना या आत्मा के वश में हो जाना। कर मैं रहा हूं लेकिन करा कोई और रहा है, जो करा रहा है वो दिख नहीं रहा है, कंट्रोल रूम दिखता नहीं है। लेकिन आप देखें ऐसी ट्रेनें आ गई कि उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, विदाउट ड्राइवर ट्रेन चल रही है, विदाउट ड्राइवर कार चल रही है। तो कैसे चल रही है? कंट्रोल करने के द्वारा। आमीन, हालेलुया, रामालीना हाके बेरे। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यार कैसे पता चलेगा कि ये आदमी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है कि नहीं है? सो मैं बहुत बढ़िया आयत मैंने आज आपको दी है सुबह, है ना। उसी आयत के द्वारा हम सीख लेंगे, इफिसियों 5:18 के अनुसार, है ना। और वहां पर आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, आत्मा के वश में व्यक्ति, आत्मा के चलाए व्यक्ति या आत्मा के कब्जे में जो व्यक्ति होता है उसकी तुलना एक शराबी व्यक्ति से की गई। कैन यू इमेजिन? एक तरफ पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात हो रही है, दूसरी तरफ दाखरस से भरे हुए, पीकर भरे हुए मतवाले व्यक्ति की चर्चा हो रही है। शुरुआती दौर में मैं बड़ा कंफ्यूजन में था कि यार पवित्र आत्मा क्या तुलनात्मक अध्ययन यहां पर रखा हुआ है, वो भी शराबी के साथ। और बाद में धीरे धीरे मुझे इसका प्रकाशन हुआ। आज मैं उस बात को आपको बताना चाहता हूं। वुड यू लाइक टू हियर? इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। Ephesians 5 verse 18 says, and do not get drunk with wine, for that is not good, but be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। Be not drunk with wine wherein excess, but be filled with the Spirit. So Paul is comparing it to drunken men. We can know a person who is drunk with alcohol by 3 different ways. कभी आपने शराबी को देखा है? आप उसको 3 तरीके से जांच सकते हैं, जान सकते हैं कि ये आदमी शराब से मतवाला है। उसके माथे पे नहीं लिखा ये शराबी है, किसी के माथे पे नहीं लिखा ये जुआरी है, बट उसके हाव भाव से आप पहचान जाते हैं कि ये शराब पी के मतवाला है। सो 3 बातें हैं जिससे आप जान जाते हैं कि ये व्यक्ति शराब से मस्त है। उसकी चाल से, उसके बातचीत के लहजे से और उसके महक से। उसके पास से एक डिफरेंट टाइप की स्मेल आएगी। सो यू कैन नो बाय 3 वेज। फर्स्ट वॉक, सेकंड टॉक, थर्ड स्मेल। यू कैन जज ए पर्सन हु इज फुल ऑफ alcohol, who is drunkard, by his walk, his talk and his smell. When a man is drunk, his walk will be different. He will walk from one end to the
road to other end, but he will slip and fall many times. Or you can say he will stagger in his walk. एक व्यक्ति जो शराब से मस्त है, भरा हुआ है, तो वो जब चलता है तो वो लड़खड़ाता है, और उसे सड़क के उस पार अगर जाना है तो उसके कदम बहकते हैं। नोट करिए, उसके कदम बहकेंगे, वो रुक रुक के चलेगा, उसे ऐसा लगेगा अब मैं गिर पड़ूंगा। स्टैगर मीन्स, स्टैगर का अर्थ है बिकॉज ऑफ इल ड्रंक और कैरी वेट। ऐसा व्यक्ति जो बीमार होता है उसकी चाल देखें, जो भारी बोझ लेकर चल रहा होता है उसकी चाल देखें। वो छोटे छोटे कदम लेगा, रुक रुक के चलेगा ताकि वो बोझ गिर न जाए। बीमार व्यक्ति उस स्पीड से नहीं चलता है जैसे एक नॉर्मल चलता है, शॉर्ट स्टेप्स वो लेंगे। इफ यू कुड फॉल एट एनी टाइम, जैसे वो सोचता है अरे मैं कहीं ना कहीं गिर ना जाऊं। एंड फाइनली जो शराबी पिए होता है वो रुक रुक के धीरे धीरे चलते लड़खड़ाते हुए चलेगा, लेकिन फाइनली अपनी जगह पहुंच के धाड़ से गिर जाएगा। तो शराबी की चाल इस प्रकार की होती है। इन द सेम वे अ ड्रंकर्ड मैन टॉक विल ऑल्सो वेरी। वेरी मीन्स VARY, वेरी। जो शराब से मस्त होता है, आप उसकी बोली को देखें, वो डिफरेंट वे में वही बात करता है, एक ही बात को कई तरीके से करेगा। मैंने देखा है कि जब आदमी एक दो घूंट पी लेता है, जब शराब के वश में आता है, जब शराब उसे कंट्रोल करती है, तो हिंदी बोलने वाला भी अंग्रेजी बोलने लगता है। उसकी टाक इंग्लिश में शुरू हो जाती है। और अक्सर मैंने देखा है जो लोग शराब के नशे में होते हैं वो समझाने वाली मुद्रा में आ जाते हैं, आपको ज्ञान की बातें ज्यादा सिखाएंगे और अपनी बात को जबरदस्ती जिद करके कहना चाहेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आप उनकी बोली में फर्क आ जाता है। कईयों की भाषा स्टैमरिंग करेगी, ही विल स्टैमर, मतलब तुतलाएंगे। कई बार वो बड़ी कठिनाई से बोल पाते हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं उसको बड़ा कठिनाई लगती है कहने में। while they are talking, even he does not remember what he spoke. ऐसा भी होता है उन्होंने क्या बोल दिया शराब के नशे में, बाद में उन्हें याद ही नहीं रहता। जब होश में आते कहते हैं अच्छा मैंने ऐसे कहा, तो आप देखें उनको वो बात याद भी नहीं रहती। His talk will be confusing, without sense. Sometimes he will use filthy languages. तो ये आपने देखा उनकी बोली में इस प्रकार का परिवर्तन दिखने लगेगा। तीसरी चीज थी स्मेल। अ मैन हु इज ड्रंक विल स्मेल डिफरेंट। यू कैन गेट द अल्कोहल स्मेल। आप उनके पास जाएंगे, नजदीक में जाएंगे, तो आपको उनके पास से शराब की बदबू आएगी। मुझे सिगरेट से बहुत हेट होती है। बस में भी कोई सिगरेट पी रहा होता था तो मैं टोकता था, मना करवाता था कि भाई मत पियो, कि वो स्मेल कोई दूर भी होगा तो मुझे पता चल जाएगा इस आदमी ने सिगरेट पी है। आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। सो इट इज द सेम विद द पीपल हु आर कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। लेकिन जैसे आप शराब के नशे में एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति आत्मा के वश में है, तो इसी प्रकार से जो आत्मा के वश में होता है उसको भी आप इन तीन तरीके से देख सकते हैं, जान सकते हैं। बाय वॉक, बाय टॉक, बाय स्मेल। पवित्र आत्मा का व्यक्ति जो होगा उसकी चाल से आप समझ जाएंगे ये व्यक्ति आत्मा से भरा है। उसकी बोली से आप समझ जाएंगे कि आदमी आत्मा के अभिषेक में है, आत्मा के वश में है। उसकी स्मेल से भी आप समझ जाएंगे। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के पास से भी स्मेल आएगी। ये मार्केट में नहीं मिलेगी, आप खरीद नहीं सकते उसे। ये वो परफ्यूम नहीं है जो बाजार में बिकते हैं।
So we can now know them by 3 different things: by walk, by talk and by smell. So हम अब देखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के वश में जो व्यक्ति है उसकी चाल कैसी होती है। गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 पद, पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की चाल कैसी होती है, उसकी वॉक। Galatians 5 verse 16 says, "This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh." Praise the Lord. पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हेलो, पूरी बाइबल में एक ही वर्ष है शरीर के ऊपर जयवंत होने का। किसी ने मुझसे पूछा था, उस वक्त मैं सही से जवाब नहीं दे पाया, बाइबल में बहुत ढूंढा और बाद में मुझे जाकर ये वचन मिला। संसारिक लोग संसारिक तरीके अपनाते हैं, आजकल बाबा लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं। क्या? कि योगाभ्यास करेंगे। शरीर का अभ्यास करने से कोई लाभ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा आप उसे मेंटेन कर सकते हो, लेकिन हश्र उसका वही होगा। शरीर के द्वारा योगाभ्यास करके, शरीर का अभ्यास करके आप सांसारिक ज्ञान हासिल कर सकते हैं, लेकिन अनंत जीवन नहीं, प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। कई सन्यासी लोग लंगोट धारण कर लेते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य नियम का पालन कर रहा हूं। कई लोग गृहस्थ छोड़कर चले जाते हैं। मुझे याद है, पहाड़ में मुझे एक बाबा मिला था, पेड़ के ऊपर उसने झूला टांगा हुआ था और झूले पे टेक लगाकर खड़ा हुआ था, एक टांग पर। मैंने कहा, अरे बाबा जी ये क्या कर रहे हो? बोले, बेटा मैंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया है, ईश्वर की खोज कर रहा हूं। अच्छा, मैंने उनसे पूछा ईश्वर मिल गए? तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। बोले, बेटा अब अगले जन्म में देखेंगे। तो मैंने कहा, इस यहां पर क्या कर रहे हो? इससे अच्छा घर जाके बच्चों को संभाल लो, जब अगले ही जन्म में देखेंगे। यही तुम्हारा विश्वास है? तो ये ऐसा नहीं है कि आपने घर छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, अब पहाड़ पे चले गए, सन्यासी बन गए, धूनी लगा के बैठ गए। नहीं, ये चीज नहीं प्रभु जी कह रहे। शरीर के अभ्यास से कोई लाभ नहीं है, आत्मा के अभ्यास से लाभ है। बोलो हालेलुया। सो मुझे क्या करना है? अगर मुझे अभ्यास करना ही है तो आत्मा का अभ्यास कीजिए। अगर योगा करना है तो आत्मा का करो। अगर आप आत्मा के वश में आ जाएं, आपका शरीर आत्मा के वश में आ जाए, तो शरीर अपनी मनमानी नहीं करेगा। शरीर की लालसा अभिलाषा क्रूस पर पहले ही दफन हो जाएगी। बाइबल कहती है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोध में है। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पाते। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। गॉट इट? आत्मा के चलाए, आत्मा के वश में हो जाना। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं? इफ यू नोटिस, अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट, his walk will be completely different. संसारिक व्यक्ति से उसका चलन बिल्कुल अलग होगा. This person will not walk according to the fleshly desire. जो आत्मा के चलाए चलेगा वो शरीर की लालसा विलासा को पूरा करने में नहीं लगेगा. शरीर जो डिमांड करे उसको उसकी डिमांड पूरी नहीं करनी है, क्योंकि शरीर अब आपका नहीं रहा है. अगर आप शरीर की डिमांड को पूरी करेंगे तो शरीर के काम प्रकट होने लग जाएंगे, और शरीर का कोई भी काम अच्छा नहीं है. मैं आपको सच्चाई बता दूं, मानव देह में, मनुष्य के शरीर में
कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने कहा कुछ भी अच्छा नहीं है। नथिंग इज गुड इन द फ्लैश। जानवर के शरीर से फिर लाभ मिल जाता है। कई लोग कई प्रकार के जानवर को खा लेते हैं। हमारे देश में तो बहुत प्रचलन है गौमूत्र, गोबर वो दवाइयों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। उनकी लैट्रिन भी इस्तेमाल हो रही है, बताइए। तो हमारा शरीर उनसे भी बदतर है। तो शरीर, हमारे शरीर से जो काम प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, लड़ाई, गालियां, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे काम हमारे शरीर से प्रकट होते हैं। So, the work of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, ideology, sorcery, enmity, strife, jealous, fits, anger, lies, quarreling, dissension, divisions, drunkenness, all these things you can see. So don't fulfill the desire, demands of the flesh. Ask Holy Spirit. He will guide you. He will guide you. So the person who will not walk according to the fleshly desire, but according to the Spirit, because he is controlled by the Holy Spirit. His mind is under the control of Holy Spirit, and he will always be after the Spirit. He will thirsty, he will hungry to be in Spirit, to know the things of the Spirit. In other words, the mind is renewed by the word of the Lord. So spiritually minded is life and peace. Have you remember in Romans 8 what Bible says? Romans 8, 5, 6, 7 and 8. In 8th word it is written, those who are in the flesh cannot please God. And 6th verse says, the spirit-filled man, he set his mind on the spiritual thing. For to set the mind on the flesh is death. If your mind is set on the fleshly things, means you are in a dead situation. But to set the mind on the spirit is life and peace. सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, अगर आपने शरीर पर मन लगा रखा है तो ये मौत है, परंतु आत्मा पर मन लगाते हैं तो ये जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से दुश्मनी रखना है। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बात पे मन लगाएगा, आध्यात्मिक आत्मा की बात पर लगाएगा। इसलिए अगर मसीह का आत्मा तुम में है तो फिर मसीह के तुम जन हो। जब तुम मसीह के जन हो तो तुम्हारे अंदर वही आत्मा है जो मसीह के अंदर है, और वही आत्मा है जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। सो वो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारी बॉडी को। इसलिए बाइबल कहती है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार दिन काटें। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मर जाओगे, पर यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। तब बाइबल कहती है रोमन 8:14, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही मेरे पुत्र हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। So Bible says we are debtors not to the flesh to live according to the flesh, for if you live according to the flesh you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. So finally Bible says
in Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Amen. So आप देखें, मुझे अब शरीर की इच्छा पूरी नहीं करनी है, आत्मा की इच्छा के अनुसार मुझे चलना है, तो मेरी वॉक डिफरेंट होगी. पॉइंट नंबर 2, बाय टॉक, आप बातचीत के जरिए जान जाएंगे कि ये व्यक्ति आत्मा के वश में है, आत्मा के चलाए चल रहा है या नहीं. मती की पुस्तक, उसके अगर आप 12 अध्याय और उसके 34 पद को पढ़ते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 34. मैं रीड करता हूं आपके लिए, मैं पढ़ता हूं. It is written there, you brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speak. वहां बाइबल कहती है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्यों? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है. भले मनुष्य के भले भंडार से भली बात निकलती है और बुरे मनुष्य के बुरे भंडार से बुरी बात निकलती है. सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके अंदर से जो बातें निकलेंगी जब आप बोलेंगे, अगर आप आत्मा से भरे हैं, आत्मा के चलाए चल रहे हैं, आत्मा ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, आप आत्मा के वश में हैं, तो आपके अंदर से भली बातें अर्थात ऐसी बातें जिसका आधार परमेश्वर का वचन है, या यूं कहूं प्रभु के वचन निकलेंगे. उस वचन में जीवन और आत्मा होगा. When a person is controlled by the Holy Spirit, his talk will be different, confirm, firm. The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Spirit controlled man will always speak the word of God. The reason is that his heart is filled with the word of God. Vain words will not come out of his mouth. जब आप आत्मा से भरे होते हैं तो आप के अंदर फिर शरीर की भूख प्यास के पीछे नहीं भागते, आप आत्मा की भूख और प्यास के पीछे भागते हैं. और आत्मा जो भीतरी मनुष्य है उसका भोजन है परमेश्वर का वचन. तो आप ज्यादा समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताते हैं, तो जिसके साथ समय बिताएंगे वही चीज आपके अंदर आएगी. आप वचन को सुनते हैं, वचन को बोलते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, वचन को याद करते हैं, आप अपने आप को वचन से भर लेते हैं. यीशु ने कहा, मेरे वचन में जीवन और आत्मा है. जब वचन आपके अंदर आता है, जिसके पास वचन है, बाइबल कहती है वो गॉड है. बाइबल में लिखा है वो अनंत जीवन पाता है, मृत्यु को नहीं देखता. बाइबल में लिखा है. तो वचन से जब आप भरे हुए हैं, आपका स्टोर रूम भीतरी मनुष्य वचन से भरा है, तो आपके मुख से जब बात निकलेगी तो जो दिल के भंडार में भरा है वही तो निकलेगी. अगर आपके दिल के भंडार में दुनियावी बातें भरी हैं, तो जब भी आप बात करेंगे दुनियावी बात करेंगे और उससे कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं. तो जब कोई आत्मा के वश में व्यक्ति होता है, जब आप उससे बात करते हैं, तो आप नोटिस करना उसकी बात का आधार परमेश्वर का वचन होगा. वो कहीं से भी बात शुरू करो, लौट फेर के वो बाइबल पे आ जाएगा, बाइबल से बातें करेगा. मुझे याद है हमारे क्षेत्र के जो एमएलए हैं, वो कई बार मुझसे प्रार्थना कराया. उनको टिकट मिलने से पहले भी मैं प्रार्थना कराने आते थे, मैं प्रार्थना करता था. और उन्होंने जहां कहीं वो अपना इलेक्शन वाला ऑफिस खोलते थे तो मुझे बुलाते थे कि पुरी जी आप भी आइए. मैं चूंकि सबसे तालमेल रखना, मैं जाता था. तो अक्सर मुझसे कहते थे कि अब हमारे बीच में पुरी जी हैं, प्रार्थना करेंगे. अब सारे अन्य जाति के लोग बैठे हैं, मैं बाइबल को कोट नहीं करता था कि अंडर सेक्शन सच एंड सच ये लिखा है, ऐसा नहीं मैं बोलता था कि मती की इस पुस्तक में ये लिखा है, मीन्स आई विल नॉट गिव द रेफरेंस. लेकिन मैं अपनी प्रार्थना टोटल वचन के आधार पे करता था.
और चूंकि वो वचन के आधार पे होती थी, उसकी काट हो नहीं सकती, तो हर व्यक्ति प्रभावित होता था। तो वो कहता था, यार आप बड़े अच्छा बोलते हैं। उनका एमएलए का ब्रदर कहता था, यू आर गिफ्टेड मैन क्योंकि जिस तरीके से आप बोलते हैं इस तरीके से तो हमने नहीं सुना। और मेरी एक आदत है, मैं लिख के ले नहीं जाता हूं कभी भी। मैं तो बस अपनी तैयारी करता हूं और उस पर्सन के साथ आता हूं और वो पर्सन मेरे अंदर से बोलता है। तो लोग मेरा इस भेद को समझ नहीं पाते थे, लेकिन वो बड़े प्रभावित होते थे। तो मेरे यहां एमएलए, एमपी, डीएम, इस लेवल के लोग भी मुझसे प्रार्थना कराते हैं। मालूम, इस बार जब इलेक्शन हुए हमारे क्षेत्र में, तो एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए जो व्यक्ति था, वो हमारे घर से 150 किलोमीटर दूर उसका घर था। और पता नहीं वो कैसे उस क्षेत्र में आने के बाद उसने मुझसे संपर्क किया, क्या पता लोगों ने कुछ कहा हो, और वो बीजेपी के टिकट से लड़ना चाह रहे थे। तो लोगों ने शायद कुछ कहा होगा मेरे बारे में, तो उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने उनसे कहा, जरूर आइए। तो उन्होंने कहा, मैं अकेला आना चाहता हूं और मैं अपनी ऑफिशियल गाड़ी में नहीं आऊंगा, ताकि लोग मुझे पहचाने अंदर से धक धक भी था खैर वो आए, आकर मेरे यहाँ बैठे, बातचीत हुई। उन्होंने जो पहुनाई मैं कर सकता था, मैंने जो उनकी हॉस्पिटैलिटी की। तो दो बातें मुझे पता चली कि एक तो वो बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित थे, उनके माउथ में कहीं कैंसर था, और दूसरा वो फाइनेंशियली एक तो बहुत स्ट्रांग था, और अंदर से वो चाहता था कि मैं एमएलए बन जाऊं। और प्रॉब्लम ये थी, उसको पॉलिटिकली उसका कैरियर नहीं था, पहले कभी वो पॉलिटिक्स में आया नहीं था, और दूसरी बात ये थी कि उसको अभी तक टिकट भी नहीं मिला था। सो बातचीत करते करते अचानक से मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना कर देता हूं आपके लिए। और मैं अपनी जगह से खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते अचानक मुझे ऐसी हुआ कि मैं 2 कदम मैंने आगे बढ़ाया, उनके करीब गया और मेरा हाथ उनके सिर पे आ गया और मैंने प्रार्थना कर दी। मैंने उनसे कहा, आप बेखौफ जाएं, टिकट आपको मिल जाएगा और आप जीत भी जाएंगे। हर बार कांग्रेस का एमएलए मेरे पास आता था, इस बार उसने आने में देर कर दी, वो देरी हो गई उसकी वो अभी तक ही देर है, और ये आदमी पहले आ गया और इसने वो आशीष ले ली, इसको टिकट भी मिल गया। कोई पॉलिटिकल कैरियर ना होने के बावजूद ये इलेक्शन जीत गया, आज इस क्षेत्र का एमएलए है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके दिल के भंडार में जो भरा है वो मुंह के रास्ते बाहर आएगा। थर्ड थिंग, जो आत्मा के वश में है, कंट्रोल बाय होली स्पिरिट, उसके पास से एक डिफरेंट स्मेल आएगी। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14 पद से 16 पद तक। एक बार मैंने इस लाइन पर मुझे प्रकाशन हुआ तो मैंने केवल इस बात के ऊपर स्कूल चला दिया, और 1 साल स्कूल चलाया मैंने। क्या? वी आर द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद से 16 पद तक, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की सुगंध, मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बट थैंक्स बी टू गॉड who in Christ always lead us in triumphal procession and through us
spread the fragrance of the knowledge of Him everywhere. For we are the aroma of Christ, means fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. To one a fragrance from death to death, and to other a fragrance from life to life, who is sufficient for these things. हम लोग वो लोग हैं जो प्रभु की विक्ट्री में चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने जय के उत्सव में लेकर चल रहे हैं, और मसीह का ज्ञान हमारे द्वारा सुगंध के रूप में चारों तरफ फैल रहा है। हर तरफ हर तरीके का व्यक्ति है। ऐसे लोग भी हैं जो नाश होने के लिए हैं, ऐसे भी हैं जो बचाए जाने के लिए। दोनों लोग हमारी बातों को सुनेंगे, दोनों को ज्ञान मिलेगा, लेकिन जो उसे स्वीकार करेगा, विश्वास करेगा, वो बच जाएगा। जो लोग मरने की कगार पे हैं, मृत्यु की गंध की उनके लिए, लेकिन जो जीवन को प्राप्त करने वाले हैं, जीवन की सुगंध के रूप में मसीह हमें इस्तेमाल करेगा। मसीह की आत्मा से जो भरपूर होगा, आत्मा के वश में होगा, तो प्रभु उसके द्वारा अपनी सुगंध अपने ज्ञान के द्वारा फैलाएगा। याद आ रहा है आपको मसीह के वचन हबक्कुक आई थिंक 2 अध्याय के 14 पद में मिलेगा कि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुंदर जल से भर जाता है। इन द बुक ऑफ हबक्कुक 2nd chapter 14 verse says, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. यह अंत के दिनों में होगा। यहोवा की महिमा के ज्ञान से हर व्यक्ति को परमपिता परमेश्वर का ज्ञान होगा, और पृथ्वी में रहने वाला हर व्यक्ति अपने रचयिता का, सृष्टिकर्ता का ज्ञान हासिल कर पाएगा कि वो कौन है। उस सत्य को जान पाएगा, सत्य से उसकी मुलाकात होगी। बिल्कुल उस प्रकार जैसे समुंदर जल से भरा होता है, ऐसे पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। बाइबल कहती है मलाकी की पुस्तक में उसके पहले पद के 11वें पद में, फॉर देम फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू इट्स सेटिंग माई नेम विल बी ग्रेट अमंग द नेशंस एंड एवरी प्लेस इंसेंस विल बी ऑफर्ड टू माई नेम एंड अ प्योर ऑफरिंग फॉर माई नेम will be great among the nations, says the Lord of hosts. उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है। हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? लोग पेड़ पौधे पत्थरों पर धूप अगरबत्ती जलाते हैं, तस्वीरों कैलेंडरों पर जलाते हैं। इसका मतलब अभी उन्हें सच्चाई से अवगत नहीं है, अभी उन्हें सत्य से उनकी मुलाकात नहीं हुई। वो सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता को नहीं जानते। सो प्रभु जी कहते हैं कि ऐसा होगा। ये कैसे होगा? आपकी स्मेल फैलेगी। स्मेल किस चीज की? परमेश्वर का ज्ञान ऐसे व्यक्ति के द्वारा फैलेगा। एक और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसी मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय के 7वें पद में लिखी हुई है, फॉर द लिप्स ऑफ ए प्रीस्ट शुड गार्ड नॉलेज एंड पीपुल शुड सीक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज माउथ, फॉर ही इज द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट। लिखा है याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ जाता है, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो मसीह की सुगंध
उसके ज्ञान की सुगंध जीवन पाने वालों के निमित्त वो हमारे द्वारा फैलती है। मतलब हमारे अंदर से परमेश्वर का ज्ञान फैलेगा जो कि एक सुगंध होगी। धूप अगरबत्ती, उसका धुआं जो ऊपर जा रहा है वो यहीं तक रहेगा, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध वो हमारे द्वारा फैलाना चाहता है। तो आत्मा जिसे वश में करता है, आप देखिए इवन ट्रेन में या बस में या गली मोहल्लों में यदि कोई गेरुआ वस्त्र पहन के आ जाए, माथे पे राख लगी हो चाहे टीका लगा हो, तो लोग क्या कहते हैं? बाबा जी आए हैं, और बाबा जी गुरु जी हैं। और यदि कोई मौलाना आ जाए हरे कपड़े पहन के, हाथ में कमंडल लेके, तो कहते हैं जी, या दाढ़ी उसकी रखी होती है, बस में भी बगल में आकर, और मौलाना साहब क्या हाल है। अगर कोई सरदार आ जाता है पगड़ी बांधे, तो क्या कहते हैं? ज्ञानी जी आए। तो जगह भी आप उन्हें दे देते हैं बैठने की, और उसे सरदार जी कह के बुलाते हैं, और सरदार जी, मौलाना जी, मौलवी साहब। लेकिन अगर कोई यीशु मसीह का भक्त आ जाए, या पास्टर आ जाए, या याजक आ जाए जिसके पास सत्य का जीवित वचन है, कोई नहीं कहता पास्टर जी बैठ जाइए, कोई नहीं कहता। वो इज्जत आप देखिए नहीं मिलती है, क्योंकि लोगों को सत्य का ज्ञान नहीं है। इवन जो क्रिश्चियन है, मैंने देखा है, वो अपने कई पास्टरों की अपने वो इज्जत रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो उनके चाल चलन, उनके व्यवहार पर ही नजर रखे रहते हैं। उनके अंदर कौन सा खजाना है, कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम, कितनी महान अद्भुत सेवा उस बुलाहट को लेकर वो चल रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता उनका। उसके लिए वो कितनी मेहनत करता होगा, आधे घंटे का संदेश देने के लिए वो कितनी पीछे बैठ के मेहनत करता होगा, तैयारी करता होगा, कोई एहसास नहीं। पुराने नियम में जब याजक के नाम चिट्ठी निकलती थी कि अति पवित्र स्थान में तुम जाओगे, तो वो महीनों अपने घर से, अपने बीवी बच्चों से अलग होके रहता था, महीनों घुटने के बल तैयारी में रहता था, वचन पे मनन करता रहता, अपने आप को पवित्रता में रखता था उस 1 घंटे की सर्विस के लिए। कैन यू इमेजिन? जिनके पास सत्य का वचन है, जीवित वचन है, उनको संसार आज रेस्पेक्ट नहीं देता, नहीं पूछते कि और पास्टर जी क्या हाल है, 4 महीने हो गए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई भी खत्म होने पे आ गया, कैसे रह रहे हो, कैसे खाना खा रहे होगे, खा भी रहे हो कि नहीं खा रहे हो। कुछ लोगों को तो सैलरी मिल जाती है, जो लोग पेड स्टाफ हैं, सारी नहीं मिल रही होगी तो आधी मिल रही होगी, लेकिन जो विश्वास की सेवा कर रहा है, हम जैसे लोग नो सैलरी, टोटली डिपेंड अपॉन गॉड। सो मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद करता हूं, मुझे बेस्ट बेस्ट खाना मिल रहा है। कल भी मैं कह रहा था, उत्तम पदार्थ खाने को मिल रहे हैं, उत्तम फल मिल रहा है मुझे मेरे यहाँ। कल मैंने किसी को फोटो भेजी, एक आम 1 किलो से ज्यादा वेट का हो गया है। डेली हम दशहरी आम डाल से गिरा हुआ नीचे गिरता है और हम खाते हैं, हम तोड़ के रखते नहीं है पकाने के लिए। मेरे छोटे से गार्डन में, छोटे से पेड़ में इतने फल हैं कि मेरे यहाँ काम करने वाली ले जा चुकी, माली ले जा चुका, बैंक मैनेजर को दिया, मेरा कंप्यूटर वाला ले गया, मेरा नाइन ले गया, सब्जी वाला ले गया, दूध वाला ले गया, सबको हमने बांटे। बाहर वाले पेड़ से हमने अचार डाले, कई लोगों ने ले लिए, जो है हमारे पास लो, तुम भी खाओ हम भी खाएं। हर रोज मैं फ्रूट खा रहा हूं, बाजार से खरीद के नहीं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आप सुपर नेचुरल वे में वो हमें खिला रहा है, और प्रभु का धन्यवाद हो। वाइफ मेरी, उसके हाथ में गिफ्ट है, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। जब आप आएंगे अगली बार मेरे यहाँ तो उसी के हाथ का खाना मिलेगा। सो मैं प्रभु का जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो पवित्र आत्मा, अगर आप उसके वश में हैं, तो मसीह की सुगंध उसके ज्ञान के माध्यम से
इस पूरी दुनिया में फैलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे यहाँ बांग्लादेश वाले ने कांटेक्ट किया, आसाम से कांटेक्ट हुआ, पाकिस्तान वालों ने, इंडोनेशिया, नेपाल, इंडिया के कितने स्टेट से लोग इस बाइबल स्कूल में जुड़ गए। तो प्रभु जी के ज्ञान की सुगंध यहीं बैठे बैठे, गांव में बैठे बैठे कितनी जगह पहुंच गई, सोचिए। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आप आत्मा के कब्जे में हैं तो यीशु की स्मेल, उसके ज्ञान की सुगंध चारों दिशाओं में फैलेगी, चारों दिशाओं में फैलेगी। A person who is controlled by the Holy Spirit will carry the smell. I'm not talking about some special kind of perfume जो बाजार में बिकते हैं, फुस फुस करके हम लोग लगाते हैं, वो परफ्यूम की बात नहीं कर रहा, इत्र की बात नहीं कर रहा हूं, but I am talking the perfume of Jesus Christ. Praise the Lord. आपने विगिल्सवर्थ की टेस्टिमनी सुनी है, मैंने उनकी बुक पढ़ी है। When Smith Wigglesworth traveled, people used to know and say, this is Christ's man. आप ट्रैवल भी करेंगे तो लोग जान जाएंगे ये मसीह का जन है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे शुरुआती दिनों में मैं रुद्रपुर से पंतनगर के लिए जा रहा था, मैं मेटाडोर में बैठा तो वो ऑलरेडी फुल थी, तो मुझे पीछे जगह बैठने को मिली। और जब मैं बैठा और थोड़ी देर चलने के बाद एक मेरा बगल में जो बैठा था मुझसे बोला कि क्या आप क्रिश्चियन हैं? मैंने कहा हाँ जी। हाउ ही नोज? लोग टेस्टिफाई करेंगे, लोग गवाही देंगे। आमीन, आमीन। थोड़ा फास्ट चलेंगे, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। सो आपने देखा 3 बातें, बाय वॉक, बाय टॉक, बाय स्मेल यू कैन नो दैट पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। आप उसकी चाल, उसकी बातचीत, उसके ज्ञान, उसकी बातों से आप जान जाएंगे कि ये आदमी पवित्र आत्मा के वश में है, उसके चलाए चल रहा है। ओके, नाउ जल्दी से एक हेडिंग डालें, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द बीइंग फिल्ड आर कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। मतलब अगर आप आत्मा के वश में हैं, उसके कब्जे में हैं, तो आपके अंदर से क्या प्रकट होगा? यू कैन नो इफ यू आर कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट आर नॉट। आप जान सकते हैं कि मैं आत्मा के वश में हूं, आत्मा के कब्जे में हूं या नहीं हूं। आप अपना असेसमेंट खुद कर सकते हैं। You can know whether you are controlled by the Holy Spirit or not. How? By examining yourself with the following manifestation. मैं आपको 10-12 यहां पर बातें लिखवा दे रहा हूं जल्दी जल्दी। आप इन बातों के जरिए अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और आप अपने आप को असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या मैं पवित्र आत्मा के वश में हूं या नहीं हूं, मैं आत्मा के कब्जे में हूं कि नहीं हूं, उसके द्वारा मैं कंट्रोल हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। सो दूसरे का मूल्यांकन भी कर सकते हो और अपना भी कर सकते हो एक तरीके से। तो दूसरे के करने के लिए मैंने 3 बातें बताई, बाय वॉक, बाय टॉक, बाय स्मेल। आप अपना मूल्यांकन करने के लिए आप चेक करें क्या आप में ये बातें हो रही हैं। फर्स्ट थिंग, नोट इट, पॉइंट नंबर 1, यू विल बी बोल्ड विटनेस and an effective soul winner for Christ Jesus. अगर आप आत्मा के वश में हैं तो आप साहस के साथ गवाही देंगे यीशु मसीह की और आत्माओं को जीतने वाले व्यक्ति होंगे। पॉइंट नंबर 2, you will worship God from the depth of your heart. आप अपने प्रभु की आराधना, जीवित प्रभु की आराधना दिल की गहराई से करेंगे, सच्चाई और आत्मा से। Point number 3, you will be able to understand your calling and ministry. अगर आप आत्मा के वश में होंगे तो आपको पता चलेगा अंदर से कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरी सेवकाई क्या है, प्रभु की योजना, प्लानिंग, मेरे लिए पर्पस क्या है, वो क्या चाहते हैं मैं करूं, और आप वही काम करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। सब बातों में हाथ नहीं डालेंगे।
कि जी इसने ये कह दिया तो उसके संग जुड़ गए, उसने वो कहा तो उससे जुड़ गए, इससे भी मिलेंगे उससे भी मिलेंगे। ना 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 ना, यू विल बी स्टैंड ऑन योर कॉलिंग। आप कॉलिंग को पूरा करने में, सेवकाई को पूरा करने में कमिटेड हो जाएंगे, और जब आप वो करेंगे तभी आपको संतुष्टि होगी। अदरवाइज यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, यू विल रनिंग हियर एंड देयर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट यू विल डू, but you will stand firm on the calling and the ministry if you understand that you are controlled by the Holy Spirit. Next point, fourth one, you will be sensitive to the voice and guidance of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति सजग रहेंगे, उसके इशारे को, धीमी आवाज को सुनने के प्रति सेंसिटिव बने रहेंगे। Fifth point, you will have a deep desire to spend time in prayer with God. आपकी हमेशा अभिलाषा होगी, इच्छा होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय पवित्र आत्मा के साथ बिताऊं, उसके साथ प्रार्थना में रहूं, उसमें बना रहूं, अधिक से अधिक समय मैं पवित्र आत्मा के संग बिताने पाऊं, उसकी उपस्थिति में बैठूं। Sixth point, you can easily recognize the evil presence. अगर आप आत्मा के कब्जे में हैं तो तुरंत आपका एहसास हो जाएगा कि यहां पर अशुद्ध आत्मा का वास है या यहां evil thing है। सातवां पॉइंट, your eyes of understanding will be open to the word of God. अगर आप आत्मा के कंट्रोल में हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए आसान हो जाता है, उसकी गहराई में आप उतर सकते हैं। आप बोलेंगे और तुरंत 3-4 बातें आपके साथ आ जाएंगी। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था स्मेल वाली, और मैंने आपको रेफरेंस दिया 2 कुरिन्थियों 2:14-16 कि हमें यीशु के ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा फैलती है। इसको बोलते बोलते अचानक से मुझे पास 3 वचन आ गए। मालूम, ऐसा नहीं मैंने कहीं लिखा हुआ था। हबक्कुक का वचन आत्मा ने मुझे याद दिलाया, मलाकी की पुस्तक के वचन याद दिला दिए, और मैंने जल्दी से उसे बोला। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आप आत्मा से कंट्रोल हैं, then you can understand, your understanding will be open to the word of God. 8वीं बात, you will have more victorious over fleshly desire. You will have more victory over fleshly desire. यानी आप आसानी से शरीर की लालसा अभिलाषाओं को अपने वश में कर लेंगे, उस पर जीत हासिल कर लेंगे। वरना संसारिक इच्छाएं, शरीर की लालसा अभिलाषाओं के बीच में आप फंस जाएंगे। 9वां पॉइंट, योर कैरेक्टर एंड नेचर विल चेंज। आपका चरित्र, आपका स्वभाव बदलने लग जाएगा, है ना। संत पौलुस नहीं, पतरस प्रार्थना करके कहते हैं, और वो बोलते हैं, पतरस कहते हैं, 2 पतरस में मिलेगा, पहले अध्याय में अगर आप 2 पद से लेकर 4-5 पद तक पढ़ जाएंगे तो आपको मिलेगा डिवाइन पावर, डिवाइन नेचर। वहां पतरस बोलते हैं कि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के से संबंध रखता है उसकी पहचान के द्वारा हमें मिला है, और वो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं भी मिली हैं, ग्रेट प्रोमिसेस, ताकि हम संसार की सड़ाहट से छूट के, संसार की बुरी अभिलाषाओं से छूट के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। डिवाइन नेचर, डिवाइन कैरेक्टर विल चेंज। मसीह का नेचर आप में अंदर आने लगेगा। नेक्स्ट 10th पॉइंट, योर फेस विल ग्लो विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप आत्मा के वश में हैं, आत्मा के चलाए चल रहे हैं, आत्मा से परिपूर्ण हैं, उस तेल से रोज भर रहे हैं, उसके अनुसार समय उसकी उपस्थिति में बिठा रहे हैं, वचन में बिताते हैं, तो आपके चेहरे पे परमेश्वर का नूर होगा। बाइबल कहती है उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। यस, आपको फिर फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा खर्चा बच जाएगा, और वो आप मेरे मिनिस्ट्री में भेज देना। प्रेज द लॉर्ड। नेचुरल ग्लो आएगा, आपकी एज मायने नहीं रखेगी,
और जो यंग लड़का नहीं कर पा रहा है, आप उस ओल्ड एज में भी वो काम करेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे। परमेश्वर का नूर चमकेगा, उसका तेज आपके चेहरे से होगा। लोग आपसे बात करेंगे तो वो हिचक के साथ बात करेंगे, एक नेचुरल वे में उनके सम्मुख परमेश्वर का भय रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके स्मेल को लिए हुए हैं, क्योंकि आप उसके ग्रेस को लिए हुए हैं, आप उसके अनॉइंटिंग को लिए हुए हैं, आप उसकी ग्लोरी को लेकर चल रहे हैं। दैट्स व्हाई। आप चेक करके देखो ऐसे लोगों को, आप उनका फेस देखो। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था मॉरिस सेरेलो को, जिनका लेटर मेरे पास आया था। शुरुआती दौर में मैंने गवाही सुनाई थी। आप बेनीहीन को देखो, अभी जी एस दिनकरन को देखिए बोलते हुए, आप उनके फेस को देखें। यस। नेक्स्ट 11th पॉइंट, यू विल हैव कमांड ओवर द पावर ऑफ डेविल। अगर आप आत्मा के वश में हो तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट आत्मा को अपने वश में कर लेगा और उसके ऊपर जयवंत हो जाएगा। दुष्ट आत्मा उसको टच नहीं कर पाएगी, प्रभाव नहीं डालेगी। या लोग चालें चलेंगे। लोगों ने किया मेरे यहां, वो नींबू हरी मिर्चें मेरे गेट के आगे आके डाल गए, चावल डाल गए। तो मैंने पड़ोसियों से पूछा, भाई ये किसकी हरकत है? अब वो बताते तो थे ही। तो मैंने कहा आपकी बार कोई डालने आया तो कहना यार एक मिर्ची एक नींबू से काम नहीं चलेगा, थोड़ी ज्यादा डालें ताकि सलाद बना के मैं खा तो सकूं। आप क्या सोच रहे हैं ये चीजें मुझ पर प्रभाव डालेंगी? आपके अंदर जो अभिषेक है वो जयवंत होगा। आप सांप और बिच्छू को लताड़ेंगे, उन्हें कुचलेंगे। बाइबल कहती है लूका 10 के अंदर, प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हेलो, लूक 10 चैप्टर वर्स 19 में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और गुड न्यूज क्या है? किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ए बिलीव इन दिस वर्ड। किसी भी, कई लोग आते हैं कहते हैं मुझे, अरे शैतान ने मुझे फांस दिया है, शैतान ऐसा कर रहा है, शैतान वैसा कर रहा है। अब टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बढ़िया सी एक टेस्टिमनी सुनाता, मजा आ जाता आप लोगों को। अपने आप को झूठी संतावना मत दो। गलती तुम करो और नाम लगाओ शैतान का, ऐसा नहीं करो। शैतान के सर को यीशु मसीह ने पहले ही कुचल दिया है, उसकी बॉडी को तुमने रौंदना है और उसके लिए अधिकार दे दिया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल गई है, अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है। और यीशु ने कहा है तुम जहर भी पी जाओगे तो हानि नहीं होगी। लेकिन इस जहर का मतलब समझ लेना, मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, इसका आत्मिक अर्थ समझना। किसी भी वस्तु से आपको हानि नहीं होगी। आप जल के ऊपर चलोगे, जल डुबा नहीं पाएगा। आग से होके गुजरोगे, आग आपको जला नहीं पाएगी। That's the thing God has given us। ये स्पिरिट का काम। 12वां पॉइंट लिखिए, You will walk in the agape love of God। अगर आप आत्मा के वश में हैं, आत्मा ने कंट्रोल किया हुआ है, तो प्रभु के प्रेम में आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु का प्यार आपके अंदर से प्रकट होगा। फिर आप अपने पड़ोसी को केवल अपने समान ही प्यार नहीं करेंगे, लेकिन मसीह ने जैसा प्यार तुमसे किया है वो मसीह का प्यार तुम अपने द्वारा उनको करोगे। और जग जान जाएगा यू आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जग जान जाएगा यू आर द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु ने खुद कहा जब तुम आपस में प्यार करोगे, कैसा प्यार? जैसा मैंने तुमसे किया, मेरा वाला प्यार करोगे तो जग जान जाएगा तुम मेरे चेले हो। एंड लास्ट पॉइंट 13, अगर आप आत्मा के वश में हैं, देन यू विल बी सबमिसिव टू ईच अदर। इफिसियों 5:18 के बाद आप पढ़ना शुरू करें, 6 अध्याय के आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पढ़ जाएं। सारे सबमिशन की बात लिखी है, पति पत्नी, चर्च एंड क्राइस्ट एंड द पीपल हु आर वर्किंग with you, in you, children, father, children like this। तो सब बातें मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, बट
जब आप आत्मा के वश में हैं तो क्या होगा कि आप एक दूसरे के प्रति सबमिसिव हो जाएंगे। नो क्वेरलिंग, ओनली लव लव लव। आप आत्मा में भी प्रार्थना करेंगे तो मुंह से निकलेगा इलू इलू। हाँ, ये टंग्स की भाषा बोल रहा हूं, शॉर्ट में, है ना। आपको बोलने में दिक्कत हो रही होगी, लंबा कौन बोले आई लव यू, जीसस आई लव यू। आप शॉर्ट में भी बोल दीजिए, टंग्स में, इलू इलू। So, spirit-filled husband will love their wives the way they should. Spirit-filled wives will be in submission to their husband's leadership. Spirit-filled children will be in obedience to their parents and will honor them. The spirit-filled workman will do his job with all diligence. सुन रहे हैं आप? He will not be a clock watcher or man pleaser. He will do his work as to the Lord, and he will honor Christ by the way he treats those who are in his office. So तो मैंने सारी बातें आपको समराइज कर दी हैं। इसका एक लाइन में अर्थ यही है कि अपने आप को एक दूसरे की अधीनता में रखो और जो कुछ करो वो मसीह के प्रेम में होकर करो। अपने आप को घमंड से बचा रखो, नम्र और दीन बने रहो। राइट? सो प्रभु आपको आशीष दे। तो इस प्रकार से ये बातें के द्वारा आप जांच सकते हैं, अगर आपके अंदर ये बातें हैं तो आप जान सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा के वश में हूं, उसके कब्जे में हूं कि नहीं। ओके, आइए हम लोग अपने आप को सबमिट करें प्रभु जी के हाथों में, उसके चरणों में, पवित्र आत्मा के अधिकार में, और फिर हम लोग क्लोजिंग प्रेयर में जाएंगे। मेरे दिल में आ रहा है कि हम एक गीत गाएं आज। कोई बात नहीं, लॉकडाउन है, लंबा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। होली स्पिरिट की लीडिंग में, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या आप अपने आप को उसके अधीन करेंगे, समर्पित करेंगे? जो कुछ आपको लगता है कि ये मेरा है, हकीकत में वो आपका नहीं है। आप केवल केयर टेकर हैं, स्टीवर्ड हैं, भंडारी हैं, वचन के भेद के भंडारी। तो अपने तक मत रखें, इसे बांट दें, लोगों को दें, शेयर करें। आप जो सांस ले रहे हैं वो भी आपकी अपनी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है। सो आपको उस पर घमंड नहीं करना है, अपनी चीजों पर घमंड ना करें, अपने गिफ्ट टैलेंट पे घमंड ना करें, अपनी योग्यता पर घमंड ना करें। पौलुस से सीखें इन बातों को और समर्पण के भाव में सरेंडर करते हुए हम इस गीत को वर्शिप के एटीट्यूड में गाएंगे। वी विल वर्शिप दिस सॉन्ग in the attitude of worship and try to surrender everything, the things which belongs to you. Your mind is saying this is my. Actually nothing is yours, everything is given by God and you are the only steward, caretaker. All to Jesus I surrender, all to him I freely give. I will ever love and trust him, in his presence daily live. I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. मेरे साथ आप भी गाइए।
All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, make me Savior, wholly Thine. Let me feel Thy Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessing fall on me. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. यस अपने आप को प्रभु की अधीनता में लाएं और कहें, प्रभु जो कुछ मेरा है, मुझे दिखता है ये सब मेरा है, हकीकत में सब आपका है प्रभु जी। आकाश के नीचे पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब तेरा है, धरती का सारा सोना चांदी तेरा है प्रभु। हम तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं प्रभु जी। और अब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, तेरे हवाले करते हैं, तुझे समर्पित करते हैं, सुपुर्द करते हैं, अपने शरीरों को जीवितता पवित्रता के साथ भावता हुआ तुझे तेरी वेदी पर चढ़ाते हैं, बलिदान करते हैं प्रभु जी। I lent myself, I yielded myself to you. You are my blessed Savior. You are all in my life, Lord. You are the first in my life. Thank you, Jesus. You are the center of my life, center of my ministry, center of this school of Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you. Oralaba shinduruduloni bebe shibaraha. Raha kalina hakbare delina handurudulini be shibere delenaba. Father, I thank you so much. In Jesus' name I pray. Pray for this group of 45 students, Lord. Thank you, Lord, that your Spirit is with us, in us, and upon us. Thank you. Our walk is like with the Holy Spirit. Our talk is with the Holy Spirit, and we will smell with the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for making us to be the carrier of your fragrance. Yes, Lord, we will carry your fragrance
We will carry the fragrance of Jesus Christ, the knowledge of your word and your to this perishing world. And this world will smell you through us, Lord. Thank you for this grace. Thank you for this benefit, Lord. Your perfume, your fragrance, your aroma is in me, in us, Lord. And I pray, let it spread in every direction. And let the people of this world smell us, smell us, smell us. And let your smell flow, and they will recognize you in us, Jesus Christ, the hope of glory in us. Wherever we go, we will reflect you, we will represent you, and we will reveal you, Lord, in this world. And this entire world will fulfill with the knowledge of your glory, Lord. Thank you, Lord. ये जगत प्रभु जी आपके महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाए जैसे समुंदर जल से भर गया है. Thank you, Lord. We ask this prayer in the mighty and matchless name of the Lord Jesus Christ. Thank you for hearing our prayer, Father. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Give glory to Jesus. ताली बजाएं और प्रभु को महिमा दें. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Holy Ghost. Thank you, thank you, thank you. Amen, Amen. Smile. आपका होमवर्क सामने है. सोच रहे हो कि मैं होमवर्क भूल गया, मुझे याद है. ओके, जॉन चैप्टर 3 वर्स 6 आज का होमवर्क है. जॉन चैप्टर 3 वर्स 6. 20 आयतें आपने याद कर ली हैं. सोच रहे हैं, सुन रहे हैं. 10 दिन बचे हैं. मजा आएगा. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. एक दूसरे के लिए प्रार्थना अवश्य करें. अपने ग्रुप को याद रखें. गॉड ब्लेस यू.